our today's topic is environment and ecologies. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, राइट? व्हाट इज द एनवायरमेंट? सो एज इट इज डिफाइंड हियर, इट इज अ general definition of the environment. It is defined as a sum total of all living and non living elements, right? जितने भी आपकी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, प्रेजेंट हैं इन द एनवायरमेंट, उन सबको मिला के आप मिला के आप उसे क्या बोलोगे? एनवायरमेंट। तो उसमें लिविंग भी आएंगे एंड नॉन लिविंग भी आएंगे। तो उनका जो इफेक्ट है ह्यूमन लाइफ पे, बेसिकली कोई भी नॉन लिविंग और लिविंग चीज है, लिविंग थिंग है, उसका जो इफेक्ट आता है ह्यूमन लाइफ पे, उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंट, राइट? बेसिकली, so while all the living or abiotic living or biotic elements are the, it can be animals, it can be forests, it can be plants, fisheries, birds. Non-living or abiotic elements, right, include water, land, sunlight, rock, and air. So it is a definition of the environment. I hope this is clear to all of you. So now the environment functions. What are the function of the environment? Environment कौन सा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, इसके बारे में जानते हैं, राइट? So basically environment provides the supply of resources, right? Whatever resources we are using, from where we are getting from the environment, the air, the water, right? And the sunlight, everything from where we are getting from the environment, right? And it sustains the life. Because of the environment only life can sustain. There is the possibility of the life. If there will be no air, water, and sunlight, how will you survive? And other things will be there, right? So all the resources are important for the life, right? To sustain the life, as you can say, macro elements, micro elements, plants, animals, and air, water. So whether it will be biotic factor or abiotic factor, both the elements are important to sustain the life, right? And assimilates waste. अब बात करते हैं एनवायरनमेंट का फंक्शन क्या होता है? वेस्ट को एसिमिलेट करना और एनहेंस करना क्वालिटी ऑफ द लाइफ को, राइट? तो हमारी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी एनहेंस कौन करता है? एनवायरनमेंट करता है। एनवायरनमेंट नहीं होता तो लाइफ भी नहीं होता। और अगर एनवायरनमेंट बेटर रहेगा तो क्वालिटी भी एनहेंस होगी लाइफ की। तो हाउ वी कैन मेक आवर एनवायरनमेंट बेटर? इट इज आवर ड्यूटी टू मेक आवर एनवायरनमेंट बेटर, राइट? कैसे? अपने एनवायरनमेंट को साफ रखे, वेस्ट को मैनेज करके, प्रॉपर वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करके, राइट? एज नाउअडेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी इन द हाउसेस कि वेस्ट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट will dispose into the different container, and the kitchen wastes will be disposed to the different container. And why we are doing this? We are helping in the environment, right? As we are seeing, environment pollution is going too high. It is rising day by day. Water pollution, air pollution, noise pollution, everything is rising day by day, right? So that is why we are providing, we are helping our environment so that we can contribute to the betterment of the environment, right? I hope you're getting. So that this is the enhancing the quality of the life. If we will enhance the environment quality, then we can enhance the quality of our life, right? Next, ecology for the hospital head administrators. So basically, environment and ecology. So basically, the environment, right? तो हॉस्पिटल में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, हेड्स होते हैं, या जो भी काम कर रहे होते हैं, इट इज देयर ड्यूटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग एंड ओवरसीइंग द हेल्थ सर्विसेज, राइट? कि वो ऑर्गेनाइज कर पाए और अच्छे से देख पाए कि हेल्थ सर्विसेज कैसी चल रही है, द डेली एक्टिविटीज ऑफ द हॉस्पिटल का, स्टाफ का, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो कैसे काम कर रहा है, राइट? डेली एक्टिविटीज ऑफ ए हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उन सब का ध्यान रखना किसका काम होता है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का। सो दे मैनेज द स्टाफ एंड बजट्स, कम्युनिकेट बिटवीन डिपार्टमेंट्स,
and they ensure the adequate patient care amongst other duties, right? So जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है हमारा हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर, वो क्या करता है, देयर ड्यूटी इज टू मैनेज द स्टाफ को मैनेज करना एंड द बजट्स, लाइक, राइट, सो दैट सी if we are providing the facilities तो of course there will be some investment, तो वो बजट देखना, अपने स्टाफ को मैनेज करना, कौन सा काम कौन सा स्टाफ करेगा, व्हाट विल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्टिकुलर स्टाफ, ये सब कौन मैनेज करता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर. एंड दे विल communicate between the departments, they will ensure the adequate patient care amongst other duties, they will educate the patient cares कैसे चल रहा है among other the duties, उनके पास और भी duties होती हैं, but all these things they will manage. तो दे विल देयर वर्क इज कि जो इकोलॉजी हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे, वहां पे साइलेंस भी रहे, वहां पे साफ सफाई भी रहे, एंड वहां पे एक दूसरे के लिए सपोर्ट भी रहे, राइट? इफ देयर विल बी नो सपोर्ट देन वर्क इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो एवरीथिंग जो इकोलॉजी है हॉस्पिटल की मैनेज करना, वो कौन करता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर. कुछ लोग होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, right? Now, so as in your syllabus, Unit 1, there is Act, which is very important Act, Environmental Protection Act 1986, right? So this is the, when they saw like there is a like damage बहुत, there is damage, right, in the environment. Damage is rising day by day. When they were knowing that, so what happens? Government of India, like government has organized, like they applied an act uh, which is the Act 1986 Act, right? So in this act, what happens? The Environment Protection Act. बेसिकली नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया उसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. नाम से ही समझ में आया. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन एग्जाम्स में भी कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे. तो 1986 में जो आपके अथॉरिटीज जो थे, कंसर्न अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंटल क्वालिटी, इन्होंने एक्ट क्यों बनाया था, ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए और एनवायरमेंटल क्वालिटीज हैं जो उसको इम्प्रूव कर पाए. दैट इज व्हाई दे मेड दिस पर्टिकुलर एक्ट, राइट? And to control and reduce the pollution from all the sources, किसी जहाँ जहाँ से pollution आ रहा है कंट्रोल हो पाए, रिड्यूस हो पाए, एंड प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट हो पाए, राइट, इसीलिए ये एक्ट बनाया गया. एंड कई सारी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हैं, राइट, फैसिलिटीज है जो एनवायरमेंटल ग्राउंड्स पे आके टिकती हैं, राइट? यू नो दैट कि जो हमारा इंडस्ट्रीज का वेस्ट है वो कहाँ जाता है, वो वाटर में जाता है, राइट? एंड या फिर वो लैंड पे कर दिया जाता है, क्योंकि वेस्ट तो बहुत निकलता है. तो उन सबका एक तरीका निकाला गया कि लाइक उनको कैसे मैनेज करे, तो इसीलिए एक्ट बनाया गया. तो यहाँ पे कई सारे वर्कर्स थे जिन्होंने मिलके काम किया, राइट? एनजीओज जुड़े आके इस एक्ट के साथ. एंड आपने सुना होगा एक चिपको आंदोलन एक्ट भी था जो पेड़ ना काटने के लिए था, लोगों ने बनाया था, राइट? वो लोगों द्वारा लोग क्या करते थे कि पेड़ को पकड़ के खड़े हो जाते थे, राइट? जब भी, ताकि कोई पेड़ को काट ना पाए, जब भी कोई पेड़ काटने जाता था तो वो पकड़ के खड़े हो जाते थे. उसको चिपको आंदोलन बोला गया था, ठीक है? तो इस तरीके के एक्ट्स, इस तरीके के उस टाइम पे आंदोलन भी आए, सो दैट कि लोगों में अवेयरनेस आए, राइट? लोग अवेयर हो अबाउट कि उन्हें अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, बिकॉज देयर आर रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट, राइट? सम रिसोर्सेज आर द लिमिटेड एंड सम आर दी लाइक अनलिमिटेड रिसोर्सेज. अब सनलाइट है, वो तो अनलिमिटेड रिसोर्स है. इवन एयर इज ऑल्सो अनलिमिटेड रिसोर्स, बट वट इज हैपनिंग नाउ, जो हमारा एयर अनलिमिटेड रिसोर्स है उसके साथ क्या हो रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, तो वो भी लिमिटेड ही हो गया है, राइट? ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है. even जो हमारे पास एयर है, that air is polluted, right? There is lots of microorganisms, lots of chemicals present in the air, right? तो एयर भी क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया है, राइट? अब इन सब के रीजंस क्या हैं ये हम आगे पढ़ेंगे. तो बेसिकली आपने देखा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो बनाया गया.
सो दैट कोई भी इसलिए किया गया सो दैट किसी भी तरह मतलब एनवायरनमेंट को हम कैसे भी करके सेफ रख पाए, राइट, इम्प्रूव कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए अपने एनवायरनमेंट को, क्वालिटी बढ़ा पाए, इसलिए ये एक्ट किया गया, राइट। नाउ सो हियर द फंक्शंस ऑफ एनजीओज, राइट। हमने बात की थी कि जो हमारे एक्ट्स बने इन सब के साथ कई सारे एनजीओज थे। एनजीओज क्या होते हैं? जो आपके बेसिकली एनजीओ जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल एनजीओज भी होते हैं जो एजुकेशन के लिए काम करते हैं कि गर्ल्स को एजुकेशन मिलना है या रूरल एरिया में जो बच्चे रह रहे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना। उसी तरीके से हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए कुछ एनजीओज होते हैं जो लोगों को कोशिश करते हैं कि लोगों का इलाज कम से कम में हो सके, राइट। एनजीओज जो होते हैं वो अवेयरनेस प्रोवाइड करवाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास एक एनजीओ है। द मेन फंक्शन ऑफ द एनजीओ का क्या था प्रोटेक्शन एक्ट में, हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में इंडिया के अंदर? तो एनजीओ जो थे दे कंस्टिट्यूट अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क इंटरैक्टिंग विद द गवर्नमेंट्स, राइट। सो बेसिकली their network is very strong. They interact to the government, right, and they knows about the which acts are coming. All these information they will be having, as there is regular interaction in between government and to them, right. So basically international जो government organization है हमारा in the shaping international environment policies, so there are very like interacting network with them. So their function is to create the awareness, right? Awareness on the like किस में awareness create करना? So among the public on current environment issues and solution. So their work is to create the awareness towards the people, right? कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे एनवायरनमेंट को, आजकल कौन कौन से इशू आ रहे हैं, तो इसके क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं। अगर कोई लीडर होगा, राइट, सो व्हाट दे विल थिंक, दे अगर वो कोई प्रॉब्लम दिखेगा तो ऑब्वियसली दे विल थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। तो एनजीओ यही काम करता है, लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, लोगों से क्या करता है उनकी लाइक उनके पॉइंट्स लेता है कि हाउ दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जो हमारी आजकल घरों में कचड़े की गाड़ी आ रही है, राइट, एंड वो अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए ही तो है कि वी शुड ऑलवेज सेपरेट द किचन वेस्ट एंड द अदर प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर इन द डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स, राइट। एंड वी शुड ऑलवेज like dump manage our waste, like which type of waste should be dumped on like where. तो we should know about this, ये सब अवेयरनेस के लिए है, right. And facilitating the participation of various categories of stakeholders in the discussion on environment issues, कि participate करो कई सारे stakeholders के साथ, sorry, the various categories of the stakeholders, जिसमें हम डिस्कस कर पाते हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं एंड हाउ वी कैन मैनेज इट। प्रोटेक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे देन हाउ द लाइफ विल सस्टेन, राइट। वी आर डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, राइट। एनवायरनमेंट में हम पूरी तरह से डिपेंड हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन लाइक फॉर द फूड ऑन द एनवायरनमेंट, फॉर द एयर, फॉर द वाटर, फॉर द सनलाइट, राइट। वी आर डिपेंड automatically we are depend on the environment only. We can't do if we cannot save our environment, if there will be issues, then we can't do anything, right. So protecting the natural resources and entrusting the equitable use of the resources, कैसे हम नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ठीक तरीके से कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग, राइट। सो अगर आपसे मैं कुछ पॉइंट्स पूछूं लाइक हाउ विल यू मैनेज योर लाइक दिस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना, तो हाउ कैन यू गिव सम पॉइंट्स? लाइक वाटर को कैसे यूज कर सकते हैं आप? यू कैन यूज द बकेट एंड द मग फॉर योर बाथिंग, यू डोंट यूज बाथ टब्स बिकॉज उसमें ज्यादा पानी जाएगा, राइट। एंड व्हेन वी आर लाइक लाइक क्लीनिंग द फ्लोर के लिए हम नॉर्मली वाटर यूज कर सकते हैं, राइट। एंड जो वाटर हमने अपने लाइक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश करने के लिए यूज किया तो उसको हम फ्लोर को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं, राइट।
एंड वी शुड ऑलवेज गिव वाटर्स टू द प्लांट्स थ्रू द मग, क्योंकि अगर हम किसी और चीज से देते हैं तो ज्यादा पानी वेस्ट हो सकता है, राइट? तो हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे पानी को सेव कर सकते हैं, एंड वी शुड ऑलवेज सेव द वाटर, बिकॉज एक दिन वाटर भी लिमिटेड रिसोर्स बन जाएगा। बिकॉज यू नो दैट इन इंडिया ऑल्सो देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे वाटर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, राइट? सो एक्चुअली जो वाटर है, बेसिकली वो तो अर्थ पे पूरा 97% वाटर है। सॉरी, 100%। हमारा जो अर्थ पे जो वाटर है ना, 100% में से, उसमें से 97% वाटर तो ऐसा है जो वी कैन नॉट यूज, वो सी वाटर है, राइट? हम यूज ही नहीं कर सकते उसको। एंड जो रिमेनिंग देर आर 3% ऑफ वाटर जो हम यूज कर रहे हैं, राइट? सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारे पास कितना कम वाटर है, एंड एक दिन ये बहुत लिमिटेड रिसोर्स बन जाएगा, राइट? नाउ वी आर हैविंग सो मच ऑफ वाटर, बट एक दिन बहुत प्रॉब्लम होगी। सो दैट इज वाई देयर वर्क, द एनजीओज वर्क इज टू provide these awarenesses, right? Awareness, so that we can use our natural resources adequately, right? So being involved in the protection of human rights, वो human rights की protection में involve रहते हैं to have a clean environment, ताकि जो हम लोग हैं हमें एक clean environment मिल सके। And they analyze and monitor the environmental quality, वो environmental की quality को monitor करते रहते हैं time to time, analyze करते हैं, and then improvement के लिए भी बात करते हैं, right? They organize some seminars, lectures, some group discussions, ताकि वो promote कर पाए environmental awarenesses। तो ये सारे functions होते हैं किसके? NGOs के होते हैं। And they help the village administrative official projects on the environment protection। तो वो हेल्प करते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव्स को, ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स जो उनके हैं किस पे? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर। तो ये सारे वर्क किसके हो जाते हैं? आपके एनजीओस के, राइट? नाउ कमिंग ऑन द इकोलॉजी, हमने एनवायरमेंट का डेफिनेशन पढ़ा था, बट हमने इकोलॉजी का नहीं पढ़ा था, राइट? सो व्हाट इज द इकोलॉजी? बेसिकली जो हमारा इकोलॉजी होता है वो ब्रांच होता है किसका? साइंस का। एक ऐसा ब्रांच है विच इंक्लूड्स द ह्यूमन साइंस, पॉपुलेशन, community, ecosystem, and biosphere, right? So in the ecology, what includes the human science, population, community, ecosystem, as we discussed कि हॉस्पिटल में इकोलॉजी मेंटेन, इकोलॉजी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो मतलब कि हमारे हॉस्पिटल का जो मतलब कम्युनिटी का इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, एनवायरनमेंट, बेसिकली उसको मैनेज करने की बात की थी हमने वहाँ पे। सो इन द इकोलॉजी द कंस्टिट्यूएंट क्या है इकोलॉजी के? पॉल्यूशन, सॉरी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, इन सबका ये एक ब्रांच है इकोलॉजी का जिसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो बेसिकली इन द इकोलॉजी वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिजम्स and the environment and how the organism interact with each other एंड देयर एनवायरनमेंट, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से और एनवायरनमेंट से कैसे डील कर रहे हैं, कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट? एंड इट इज द स्टडीड एट वेरियस लेवल्स सच एज ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, एंड बायोस्फीयर एंड द इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे पढ़ी गई है कि ऑर्गेनिज्म लेवल पे अलग, पॉपुलेशन लेवल पर अलग, कम्युनिटी लेवल पे अलग, बायोस्फीयर लेवल पे अलग, और एंड द इकोसिस्टम, राइट? इकोसिस्टम में पूरा एनवायरनमेंट आ जाएगा। कम्युनिटी में हम लोगों की बात करेंगे कि कैसे वो खुद को इम्प्रूव करें या क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। पॉपुलेशन में कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, राइट? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज का यूज भी ज़्यादा होगा, राइट? और ऑर्गेनिजम्स, लाइक कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो इकोलॉजी को हमारा इफेक्ट कर सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? इवन दे आर हार्मफुल एज वी नो दैट। एंड बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उस अलग अलग लेवल पे स्टडी किया गया है इकोलॉजी को, राइट? नाउ इकोलॉजी में हमारा दो मेन कंपोनेंट्स जो हमारे पास है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं लिविंग फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जो भी आपका इकोसिस्टम का जो आपका लिविंग फैक्टर्स है उसको आप क्या बोलेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स, राइट? लिविंग फैक्टर्स जैसे कि एग्जांपल्स हैं लाइक कि बैक्टीरियाज,
एनिमल्स, बर्ड्स, फंजाई, प्लांट्स, ये सारा किस में आता है? बायोटिक में, जितने भी आपके लिविंग फैक्टर्स है। नाउ कमिंग ऑन द ए बायोटिक, जो आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होता है, लाइक केमिकल, इट कैन बी एनी केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। सो द कंपोनेंट्स कुड बी एक्वायर्ड फ्रॉम द एटमोसफेयर। ये एक जो कंपोनेंट है आपको एटमोसफेयर से मिलेगा, लिथोस्फेयर से मिलेगा या हाइड्रोस्फेयर से मिलेगा, राइट। लिथोस्फेयर क्या होता है आपका? टफेस्ट जो पार्ट होता है, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और a few examples of abiotic components include the sunlight, soil, air, moisture, etc. Right? Now, so even this also comes under the unit 1, principles of environmental impact assessment. So basically हमारा जो environment में इतना like it is like unorganized, right? So ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो we can start directly. We should always like have the favor और it should be approved. कोई भी प्रोजेक्ट अगर कहीं पे कोई डैम भी बना है, it should be approved कि हाँ यहाँ पे ये बन सकता है। तो बेसिकली जो हमारा प्रिंसिपल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये होता क्या है? तो एक तो देयर इज अ 8, बेसिकली देयर आर सम 8 गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स that govern the entire process of environmental impact assessment, and इनके नाम दिए हुए गए हैं। बेसिकली ये जो असेसमेंट है ये इसलिए होता है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी एनवायरनमेंट पे कोई भी छेड़छाड़ करने जा रहे हैं, कोई चीज बनाने जा रहे हैं, तो हमें इनका अप्रूवल लेना बहुत जरूरी होता है। वाई? ताकि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई तरीके की प्रॉब्लम आती है बाई चांस, राइट, कि प्रॉब्लम इन द सेंस कि उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी एनवायरमेंटल उससे छेड़छाड़ करने से पहले वी शुड ऑलवेज अप्रूव्ड, इट शुड बी अप्रूव्ड कि इसके बाद कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। और अगर कोई इफेक्ट पड़ भी रहा है एंड वो काम करना जरूरी है, तो उस इफेक्ट को कैसे हम लाइक रिड्यूस करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, इसके बारे में जानना जरूरी होता है, राइट। So here there are 8 guiding principles, which is the participation सबसे पहले। तो an approach and timely access to the process for all the interested parties, transparency should be there। like एक तो पार्टिसिपेशन था कि आप कोई मतलब एक अप्रोप्रिएट और टाइमली एक्सेस होना चाहिए किसी भी प्रोसेस के लिए, राइट। फॉर अगर आप किसी मतलब फॉर ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज, कोई भी इंटरेस्टेड है तो उसका एक टाइमली अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से एक दिन पहले, नो, इट शुड बी लाइक टाइमली। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कोई भी चीजें छुपी नहीं होनी चाहिए। जितनी भी असेसमेंट डिसीजंस होने चाहिए वो सामने होना चाहिए गवर्नमेंट के। सर्टेनिटी होनी चाहिए कि जो प्रोसेस है, जो टाइम है वो अग्रीड होना चाहिए, एडवांस में कुछ फॉलोड बाय द ऑल पार्टिसिपेंट्स की जो काम है वो कब खत्म होगा, हर चीज का एक प्रॉपर टाइमिंग प्रोसेस होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। डिसीजन मेकर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल दी पार्टीज। तो अकाउंट जो हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, ऑफ देयर एक्शंस एंड डिसीजंस अंडर द असेसमेंट प्रोसेस। एंड क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। असेसमेंट जो है इज अंडरटेकन विद द प्रोफेशनलिज्म एंड ऑब्जेक्टिविटी, राइट। सो इट शुड बी लाइक असेसमेंट जो है इट शुड बी अंडरटेकन, राइट। एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट की बात करते हैं, कितना किसमें कॉस्ट लग रहा है। तो जो असेसमेंट प्रोसेस है तो उसका आउटकम विल बी इंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एट लीस्ट कॉस्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट। जो कॉस्ट हो तो सोसाइटी को, सोसाइटी कोई भी एनवायरमेंट हम जुड़े काम करने जा रहे हैं तो सोसाइटी को उसका कोई भी कीमत ना, लेकिन उसकी कोई भी कीमत ना चुकानी पड़े, उस पर इफेक्ट ना पड़े उस चीज का। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। द असेसमेंट प्रोसेस शुड बी एबल टू अडेप्ट टू डील एफिशिएंटली विद एनी प्रपोजल एंड डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, राइट। जो हमारा असेसमेंट प्रोसेस हम करते हैं वो हमेशा इट शुड बी एबल टू अडेप्ट कर पाना। अगर डील एफिशिएंसी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो वो अडेप्ट कर पाए प्रपोजल और डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस को।
Practicality. So the information and the outputs provided by the assessment process are readily usable in the decision making and the planning, right? इसका मतलब क्या है, जो हम इंफॉर्मेशन और जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं बाय द असेसमेंट प्रोसेस, वो रेडिली अन यूजेबल होना चाहिए, यूज कर पाए हम उसको इन द डिसीजन मेकिंग एंड द planning, right? So these are some guideline principles that govern the entire process of the environmental impact assessment. Participation, transparency, certainty, accountability, credibility, cost effectiveness, right? Flexibility and practicality. ठीक है? What is the environmental impact assessment? अब इस ये है क्या, हमने इसका पढ़ा कि ये क्या क्या कर सक लाइक इसकी गाइडलाइन प्रिंसिपल्स क्या है। अब ये है क्या, तो बेसिकली मैंने आपको वहाँ पे भी एक छोटा इंट्रोडक्शन इसका दिया था कि ये कैसा प्रोसेस होता है जो कि इवेल्युएट करता है लाइक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो भी हमारे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट डेवलप करवाए जा रहे हैं, राइट? तो उसके बारे में गवर्नमेंट को नॉलेज में रखना and taking into the account interrelated socio-economic culture, human health impacts, both beneficial and adverse। and जो हमारा environmental impact assessment है, वो एक ऐसा tool है जो हम use करते हैं to assess the positive and negative environmental, economic and the social impact of a project। तो इसे हम use करते हैं। So this is used to predict the environmental impacts of a project in the pre-planning stage। जब प्रोजेक्ट का प्री प्लानिंग स्टेज होता है, तब तब हम इसे क्योंकि हमें अप्रूव भी कराना है, राइट? सो itself so that the decision can be taken to reduce like the adverse impacts, right? So importance of the environmental impact assessment. So here environmental impact assessment, it is basically a good tool for the prudent environment management। हमारे environment management के लिए एक बहुत अच्छा tool होता है and it is government policy। गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है जो कि कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अगर इंडिया में हो रहा है तो इट हैज टू सिक्योर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस। उसका क्लियरेंस उसको मिला होना चाहिए, अप्रूवल, तभी फ्रॉम द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। कौन देता है अप्रूवल? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो बिफोर द अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, प्रोजेक्ट के अप्रूवल से पहले ये काम हो जाना चाहिए, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। नाउ कमिंग ऑन द एयर पोल्यूशन, तो आपने देखा होगा कि आजकल एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ द एयर पोल्यूशन? हमारे गाड़ियों का धुआं, राइट? इंडस्ट्रियल से जो निकल रहा होता है धुआं, वो, राइट? एंड द वेस्ट, वेस्ट भी कॉज करता है एयर पोल्यूशन, क्योंकि वेस्ट से बहुत सारी बीमारियां होती हैं एंड दैट विल एंटर टू द एयर ओनली, राइट? सो एयर पोल्यूशन के बहुत सारे, देयर आर मेनी रीजंस। तो उसको स्टॉप कैसे करेंगे एयर पोल्यूशन को, राइट? एक तो उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज कॉजिंग होता है, कई सारी डिजीज हो सकती है। तो जो हमारा एयर पोल्यूशन है, उसको कैसे स्टॉप करेंगे? तो हमारे जो व्हीकल एमिशंस आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे बड़ा सोर्स कौन है एयर पोल्यूशन का? जो हमारे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों की वजह से सबसे ज्यादा होता है। तो ज्वाइन विद योर लोकल कम्युनिटी, थिंक ऑफ वेज टू गेट द थिंग्स डन दैट डोंट रिक्वायर अ कार सच एज बाइक्स। तो इसके लिए जो हम काम कर सकते हैं ना, वो है कि हम क्या कर सकते हैं, गाड़ियों कारपूलिंग कर सकते हैं। कि अगर हमें सेम जगह जाना है तो हम एक ही गाड़ी में जाएं, सब अपनी अपनी अलग गाड़ियां ना लेके जाएं। बस का यूज कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज कर सकते हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम होगा, राइट? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना एंड ये सारा जो, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा कम हो जाएगा, राइट? एक बार दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रूल लगाया था, ऑड इवन, ऑड गाड़ियां एक दिन चलेंगी, एक दिन इवन गाड़ियां चलेंगी। तो उससे भी काफी एयर पोल्यूशन कम हुआ था, उस टाइम पे स्केल काफी नीचे हुआ था, राइट? तो ऐसे ही अगर हम कुछ स्टेप्स लेते हैं तभी एयर पोल्यूशन कम होगा। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो भी एयर पोल्यूशन बहुत कम होगा, राइट?
तो वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? एक्चुअली बेसिकली वी हैव फोर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, राइट? सो हमने एयर पोल्यूशन को किया, अब हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। तो जो हमारा वाटर पोल्यूशन होता है वो कैसे होता है? जब हमारा वाटर कंटामिनेट हो जाता है, राइट? कंटामिनेशन ऑफ द वाटर बॉडी इज यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। वाटर पोल्यूशन तो मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही बढ़ रहा है, सो दैट इट नेगेटिवली अफेक्ट्स इट्स यूजेस। तो बेसिकली किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो, वो बढ़ता तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। हम ही एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, राइट? अब जैसे कि हमारा जो फैक्ट्रीज है उसमें से जो केमिकल रिलीज होता है, अब हम उसको कहाँ फेंकेंगे? उसको वाटर में ही तो फेंक देंगे। और अगर हम उसको लैंड में डंप करते हैं तो लैंड में प्रॉब्लम होता है, सॉइल में प्रॉब्लम होगा, सॉइल में मिक्स होगा वो, राइट? तो कहीं ना कहीं इसका एक ही यूज है कि केमिकल्स को कोशिश करें कि कम से कम यूज हो पाए, राइट? और उसको वाटर में ना फेंका जाए। बाकी और जो हमारा वाटर पोल्यूशन होता है, कंटामिनेशन, और उससे कई सारी डिजीजेस भी होती है। वाटर बॉर्न डिजीजेस है हमारे पास बहुत सारी, राइट? वो किसकी वजह से हो रही है? वाटर पोल्यूशन की वजह से तो हो रही है, राइट? नाउ कमिंग ऑन द हाइड्रोस्फीयर। सो ये क्या है? क्यूमुलेटिव वाटर है जो कि अर्थ पे है। उस क्यूमुलेटिव वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है? जो वाटर सरफेस के अंदर में है, अंडर वाटर। एंड द एयर इज इंक्लूडेड इन द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में एयर भी इंक्लूड होता है। तो हाइड्रोस्फीयर्स ऑन द अर्थ में बी लिक्विड, इट कैन बी वेपर और इट कैन बी आइस, ठीक है? सो ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, लेक्स एंड द रिवर। तो अर्थ की सरफेस से वाटर कौन कौन सी फॉर्म में होता है? ओशियंस में होता है, लेक्स में होता है, रिवर्स में होता है। एंड इट इज ऑल्सो फाउंड अंडर द अर्थ इन द वेल्स। तो अर्थ के अंदर भी मिलता है हमको, कैसे? वेल्स में मिलता है। एंड इट एक्वायर्स द वेपर as fog and the clouds, right? And is most noticeable. So ग्लेशियर्स है, आइस कैप्स है, आइसबर्ग्स है, और कुछ फ्रोजन पोर्शन है अर्थ पे, अर्थ के हाइड्रोस्फीयर पे। तो वो सब आ जाता है इसके अंदर, राइट? तो फ्रोजन पोर्शन है जो हाइड्रोस्फीयर का, उसको क्या बोलते हैं हम? क्रायोस्फीयर। जो आपका फ्रोजन पोर्शन है ऑन द हाइड्रोस्फीयर, इट इज नोन एज द क्रायोस्फीयर। एंड इन अ साइकिल, बेसिकली जो वाटर फ्लो करता है बाय द द वाटर फ्लोज बाय द हाइड्रोस्फीयर, राइट? वाटर कहाँ से फ्लो करता है? हाइड्रोस्फीयर से फ्लो करता है। सो वाटर फॉर्म्स इन द क्लाउड्स। वाटर जो है वो क्लाउड्स की फॉर्म में जाता है। देन क्या होता है? रेन और स्नोफॉल होता है ऑन द अर्थ। तो वो वापस से अर्थ को मिल जाता है। It will go into the lakes, in the rivers, in the oceans, right? And oceans, they will absorb this water. So then it evaporates into the atmosphere. Again, the evaporation process will be there. Evaporation मतलब जो water का collection हो रहा होता है ऊपर clouds में, into the atmosphere, and the restarts the loop. So this is nothing but the water cycle. तो ये एक water cycle होता है कि एक बार अर्थ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं, देन वो कलेक्ट होते जा रहे हैं, कलेक्ट होते जा रहे हैं, देन दे विल फॉल, राइट? हाउ? थ्रू द रेन। तो रेन हो जाएगा एंड दिस विल बी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, राइट? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है आपको? अब किसकी बात करते हैं? लिथोस्फीयर क्या होता है? तो आपका जो लिथोस्फीयर होता है वो एक रिजिड आउटर मोस्ट शेल होता है अर्थ का। कैसा होता है? रिजिड सा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है? आउटर मोस्ट। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ द क्रस्ट एंड द पोर्शन ऑफ द अपर मेंटल दैट बिहेव्स इलास्टिकली ऑन द टाइम स्केल्स ऑफ द थाउजेंड्स ईयर्स और ग्रेटर, ठीक है? तो ये कैसे बना होता है? आउटर मोस्ट शेल होता है अर्थ का, ये क्रस्ट से बना होता है, और दो अपर मेंटल का जो पोर्शन है वो रहता है। सो इट बिहेव्स इलास्टिकली ऑन टाइम स्केल थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड द ग्रेटर। इलास्टिकली बिहेव करेगा वो जब बहुत साल हो जाएंगे, राइट? तो जो आउटर मोस्ट शेल है ऑफ ए रॉकी प्लैनेट,
the crust is defined on the basis of its केमिस्ट्री एंड मिनरलॉजी, उसके अंदर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, बेसिकली ये केमिस्ट्री में आ जाता है आपका, कि जो क्रस्ट है वो कैसा है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, कौन से मिनरल्स उसमें प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे आपके टाइप्स दिए हुए हैं लिथोस्फीयर के, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लिथोस्फीयर। एक होता है ओशियानिक एंड एक होता है कॉन्टिनेंटल, ठीक है। ओशियानिक जो है विच इज एसोसिएटेड विद द ओशियानिक क्रस्ट एग्जिस्ट इन द ओशियन बेसिन्स, जो ओशन के बेसिन्स में आपको मिलेगा उसको आप बोलेंगे ओशियानिक क्रस्ट। एंड जो कॉन्टिनेंटल होती है, जो आपके एसोसिएटेड विद द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो आपके कॉन्टिनेंटल पे ही मिलेगा, राइट, उसको बोलते हैं, जो आपके सरफेस पे रहेगा उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। So now coming on the noise pollution, there is the sources and effects, standards and controls of the noise pollution. तो बेसिकली नॉइज पोल्यूशन होता है क्या है, तो नॉइज पोल्यूशन जो होता है वो एक अनवांटेड साउंड होता है। कोई भी चीज जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है वो हो रही है, तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। सो अनवांटेड साउंड जो है वो किसी को भी जरूरत नहीं होती। समटाइम्स यू मे गेट इरिटेट विद द अनवांटेड साउंड, तब भी तुम्हें उस तरीके की प्रॉब्लम होगी। समटाइम्स क्या होता है, हमें नींद आ रही है, हम सोना चाह रहे हैं, पर कोई अलग सा साउंड आता है तो हमें प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि हमें तो सोना है, बट ये जो साउंड आ रहा है, राइट। तो नॉइज पोल्यूशन भी एक तरीके का अनवांटेड साउंड होता है जो हमें नहीं चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है अर्थ पे, लेकिन वो फिर भी हो ही जा रहा है। तो नॉइज पोल्यूशन कई सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। कई जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा शोर, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। जिसको जो पेशेंट्स होते हैं आपके, उनको नॉइज से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको पीस की बहुत ज़रूरत होती है, राइट। सो नॉइज पोल्यूशन एक तरीके का, इसीलिए हम उसको नॉइज पॉल्यूशन कह रहे हैं, क्योंकि वो बढ़ रहा है एंड इट इज़ अफेक्टिंग, राइट। सो बेसिकली साउंड इज द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारा जो साउंड है, एक तो वो बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब पहला एक मतलब है कम्युनिकेशन का, राइट, जो एनिमल्स के बीच में होता है, ह्यूमंस के बीच में होता है। तो लो साउंड इज प्लीजेंट, जो लो साउंड होता है ना वो प्लीजेंट होता है और हार्मलेस होता है। लेकिन जो लाउड साउंड होता है, आपने देखा होगा लाउड साउंड आपको वैसे भी किसी का नहीं पसंद होगा, तो जो लाउड साउंड होता है वो अनप्लीजेंट होता है, वो अच्छा नहीं लगता है, राइट। और अनवांटेड साउंड होता है, तो उसी को नॉइस कहते हैं। जो भी लाउड या अनप्लीजेंट साउंड होता है उसको नॉइस कहते हैं। तो गिवन साउंड कैन अपीयर म्यूजिक टू सम एंड नॉइस टू अदर्स। अब कोई एक साउंड है जो किसी को म्यूजिक लगता है, किसी को क्या लगता है, शोर लगता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लाउडनेस, ये लाउडनेस पे डिपेंड करता है। दूसरा ड्यूरेशन पे कि वो कितनी देर चल रहा है। दूसरा मूड ऑफ द पर्सन, राइट, मूड पे भी डिपेंड करता है। आपको म्यूजिक नहीं सुनना और म्यूजिक चल रहा है तो व्हाट यू विल कॉल इट, नॉइज पोल्यूशन ऑफ कोर्स, बिकॉज यू डोंट नीड दैट, राइट, मूड नहीं है आपका। ऑल और यू कैन से कि यहाँ पे कोई चीज है जो आपको 1 घंटे की ड्यूरेशन दी है, बट 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो नॉइज पोल्यूशन। जैसे हम क्लास ले रहे हैं, राइट, तो आपका क्लास में अगर मन नहीं लग रहा, तो ऑफ कोर्स मैं आपके लिए बोल रही हूँ, तो इट इज अनवांटेड साउंड फॉर यू, सुन ही नहीं रहा कोई, राइट। सो फॉर यू इट विल क्रिएट नॉइज पोल्यूशन, राइट, राइट स्टूडेंट्स, एम आई राइट? ओके, सो बैक टू द टॉपिक नाउ। सो जो हमारा नॉइज पोल्यूशन है, लाइक कई सारी सिकनेस भी हो सकती है इससे, फिजिकल फॉर्म ऑफ द पोल्यूशन होता है। सो इट इज नॉट द हार्मफुल टू द एयर, सॉइल और वाटर को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है ये, ओनली इट अफेक्ट्स द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस, राइट। सो जो नॉइज जो होता है वो एक ऐसा अनवांटेड साउंड होता है जो कि अनप्लीजेंट है, लाउड है, डिसरप्टिव है, एज आई टोल्ड यू। सो ह्यूमंस हैव द हियरिंग रेंज कॉल्ड ऑडिबल रेंज। हम जो हमारा एक हियरिंग रेंज होता है जिसको हम ऑडिबल रेंज कहते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा ऊपर चली जाती है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे ईयर ड्रम्स को भी अफेक्ट कर सकता है वो, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड, ठीक है। तो वो डिपेंड किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे और साउंड की लाउडनेस पे, राइट। So basically, for a person with normal hearing frequency ranges, it is 20 to 20,000 hertz, and loudness ranges from the 0 to 120 dB, right? So ये आपका normal होता है hearing range
hertz में, and it is in the dB, which is the decibels. So sound is measured in the decibels. तो decibels की बात करें तो 0 to 120 dB, and अगर hertz की बात करें 20 to 20,000, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. तो decibel value above the 80 is considered to be noise pollution. Decibel value में अगर तुम 80 से ऊपर की बात करते हो तो it will consider the noise pollution. Okay, students. So we covered many topics in the overview session. I just tried to cover the important topics. I have covered that. So for the details, you can go on the LMS and you can check the unit wise. Okay. So thank you so much, students, for attending the lecture.